ये पूरा tariff war is all over the news. Everyone's talking about it. US stock market is 20 times bigger than the Indian stock market. Indian market has given almost 600% return. 600%. World Bank predicted that we will have the worst recession after 1929. जब भी कोई भी मार्केट वॉलेटिलिटी आती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सिप्स को रोक देते हैं. मुझसे जनरली लोग पूछते हैं कि आपका मार्केट पे क्या व्यू है. मार्केट पे मेरा व्यू तो बहुत अच्छा है. बट देन फिर इतना बड़ा हवा क्यों बनाया जा रहा है? US dollar has depreciated by 10,000% against gold, which is the most undervalued stock in the world as per you. And I said India. अब मनी का एक नेचर है that money always chase growth and growth lies in India. हाय, मेरा नाम है शगुन एंड स्वागत है आपका एनी मनी के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में. आज के हमारे गेस्ट काफ़ी खास हैं. ही हैज़ ओवर 14 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ही इज़ द को फाउंडर ऑफ आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विसेज. वी हैव विद अस मिस्टर अमित जैन. तो बहुत सारी बातें करनी है हमें. ये पूरा tariff war is all over the news. Everyone's talking about it. And April 7th को we saw that Nifty fell down 3.24%, Sensex fell down 3%, and investors' wealth में there was a wipeout of 14 lakh crore rupees, which is massive. और ये सब तब हो रहा है जब इस पूरे tariff का इंडिया के ऊपर इतना कुछ impact नहीं था, right? There were no harsh tariffs against India as such. But then, despite all of that, the market was shook. Why is this happening, and what's up with this? So Indian market, I don't know how much you know about it. जो हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड. अगर मैं सितंबर 2024 की बात करूं तो जो निफ्टी है, जो इंडिया का बेंचमार्क इंडाइसिस है, वो वर्ल्ड इंडाइसिस से ऑलमोस्ट 70% प्रीमियम वैल्यूशन पे ट्रेड करता था. मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2024 का, जब निफ्टी ने 26,000 को टच किया था. It was an all-time high. Right? So that was the valuation of Indian stock market. Yeah. And historically, Indian market has been richly valued because हमारे पास growth है. बिल्कुल. I'll just give you a comparison. In last 25 years, if you see, Indian stock market is the best stock market in the world, Wow. beating all other markets by miles. And I'm talking about dollar terms. I'm not talking about INR. So it has already taken into account the rupee depreciation thing in last 25 years. To give you a number in perspective, Indian market has given almost 600% return at an indices level. 600%. Return in dollar term at indices level. Forget about the stocks. Insane. 600% is a lot. Agree. Compared with UK, which has given only 50% return in dollar term in last 25 years, which may be a CAGR of 2.2, 2.3. Wow. That's what India is all about. So the markets are strong. Markets are very, very strong, and we have a reason for it. So my point is that Indian stock market traditionally has been a richly valued market because of the growth factor. Got it. India is the only economy in the world which is growing more than 7% CAGR in last 25 years. Can you tell me any other economy apart from China which can grow at that pace? Probably no. Right? So this premium will remain. Yeah. Even today, we are not 70% premiumly valued compared to the global markets, but we are still at least 30% overly valued compared to the global pairs. Yeah. This will remain. Now, when the tariff war comes, so tariff का impact हो सकता है इंडियन बिजनेस के ऊपर हो, Yeah. बट निफ्टी के ऊपर उसका जो है इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा. उसका एक रीज़न है कि अगर आप निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट देखेंगे, सेक्टोरल कंस्टिट्यूएंट्स, तो निफ्टी में अगर 100% वेटेज है सेक्टर्स का, तो उसमें करीबन 40% बैंक का वेटेज है, या बैंकिंग का और फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक्स का वेटेज है 40 to 42%. ठीक है. उसके बाद वेटेज है आईटी का, और उसके बाद थोड़ा वेटेज है एफएमसीजी का, ऑटोमोबाइल का और फार्मा का. तो जो टैरिफ से इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर्स हैं वो है आपके फार्मा और ऑटोमोबाइल, जिनका टोटल वेटेज निफ्टी के अंदर आई थिंक लेस देन 10% है. So we are relatively in a safe position right now. Right? 100%. एंड दैट इज द रीजन जिस दिन डाउ जोन्स 12% गिरा था, हम सिर्फ 4% गिरे थे. You can make out, right? And that shows a difference because Dow Jones is the mother of all market, or Nasdaq is the mother of all market, or I can say US stock market is the mother of all stock market. True. They fallen by 12% in a single day.
I think that was the biggest fall after COVID, which is March 2020 we have seen in the US market. Still, India has outperformed because we will not have that level of impact of tariff on Indian stock market. So we remain resilient, and now even at Nifty 24,000, we are seeing that resilience continues for India. So IMF predicted कि global growth will be at 3.3%. And ये historically अगर हम averages देखें तो it is much lower than that. Now the reason that they give is कि trade tensions अभी ज़्यादा है, there's a lot of political uncertainty, which all makes sense. But जो normal Indian investors हैं, retail investors हैं, जो maybe US market में invest करते हैं या global markets में invest करते हैं, what do you think उनका अब next step क्या होना चाहिए? Because clearly global markets are a little bit, देखिए जो volatile right now. IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे होते हैं इकोनॉमिस्ट. जी. ठीक है, दे ऑलवेज प्रेडिक्ट. आई रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच आई रेड इन मीडिया इन कोविड टाइम्स. वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्टेड that we will have the worst recession in COVID-19 days. We will have the worst recession of the world after 1929. Oh, wow. That's what they predicted. They said कि बस इतना ज़्यादा मंदी आने वाला है मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आप सोच नहीं सकते हो. ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था कोविड के अंदर. क्या कोविड के बाद आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरा, या कोविड के बाद मार्केट 4 गुना हो गया? 4 गुना ही हुआ है. हाँ, तो फिर IMF की बात हम नहीं करेंगे अपने पॉडकास्ट के अंदर और वर्ल्ड बैंक की बात भी नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दे कम अप विद द नंबर. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ चेंज हुई है पिछले 50 सालों के अंदर. ये जो 1929 का डिप्रेशन, जो लोग जनरली बात करके हमें डराते हैं जब भी मार्केट गिरता है, तो 2 ही चीज़ें मैं मीडिया में सुनता हूँ. अगर मैं फॉरेन मीडिया को सुनता हूँ तो बात करते हैं 1929 के डिप्रेशन की, और अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बात करता हूँ तो लोग हमें डराते हैं हर्षद मेहता के नाम से. ट्रू. नाउ 1929 का डिप्रेशन जो है वो इसलिए था कि तब फियाट करेंसी सिस्टम नहीं होता था. फियाट करेंसी सिस्टम क्या होता है कि 1971 में यूएस ने वर्चुअली डिफ़ॉल्ट किया अपने पेमेंट्स के अंदर. बिकॉज 1971 से पहले क्या होता था, आप केवल उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते थे जितना कि आपके पास गोल्ड रिजर्व होता है. ठीक है, तो तब जो है जब आपका गोल्ड रिजर्व अगर कम है तो आप कम करेंसी प्रिंट करेंगे, अगर गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर सकते हैं. राइट. सो 1929 में रिसेशन की पॉसिबिलिटी थी बिकॉज करेंसी का जो प्रिंटिंग है वो बहुत लिमिटेड होता था. तो रिसेशन आ सकते थे, जो कि 1929 में आया. पर 1971 के बाद तो करेंसी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. आप पेपर प्रिंटिंग प्रेस में डालो और आपका डॉलर प्रिंट होके आ जाता है. तो रिसेशन आएगा कैसे? सो आई सेड आई विल नॉट टॉक ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी प्रेडिक्शन देखे हैं पिछले 12 साल के अंदर अपने करियर के अंदर, जहाँ जो भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन ने बोला, ठीक है, वो कभी चीज़ें सच नहीं होती हैं. और मुझे याद नहीं कि आज तक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कभी भी IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने बहुत रोजी पिक्चर दुनिया की दी हो. हाँ, दिस इज ट्रू. बहुत ज़्यादा आई थिंक पैनिक क्रिएशन होता है. हर बार कुछ भी होता है, दे विल स्टार्ट रिवाइजिंग डाउनवर्ड एंड देन अगेन दे रिवाइज इट आफ्टर 3 मंथ, दे रिवाइज इट अपवर्ड एंड फाइनली नो वन नोज कि क्या हुआ बॉस. राइट. सो आई विल नॉट गो ऑन IMF प्रेडिक्शन व्हाट यू सेड, बट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? योर सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज, आई थिंक इन्वेस्टर्स को डिपेंड करता है कि उन्होंने किन स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए हैं. अगर उन्होंने इंडेक्स में पैसे लगाए हुए हैं, दे सेफ. ओके. अगर आपने निफ्टी के अंदर पैसे लगाए हैं, आप सेफ हो. निफ्टी को कुछ नहीं होना. कोई निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो आपके बेस्ट स्टॉक्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड. हाँ, लेकिन अगर आपने निफ्टी को देख के कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपने किसी स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ. क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो निफ्टी तो ऊपर जाएगा, ठीक है, वो स्मॉल कैप का स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज there might be a different reason to it. I don't want to talk on this podcast about it, but there may be different reason why a small cap is not going up. तो जिसके पास भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सो मुझसे जनरली लोग पूछते हैं कि आपका मार्केट पे क्या व्यू है. आपने भी पूछा मार्केट पे क्या व्यू है, तो मार्केट पे मेरा व्यू तो बहुत अच्छा है. हाँ, बट लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के पोर्टफोलियो जो भी जिस इन्वेस्टर्स के हैं उन पे क्या व्यू है, वो आई थिंक उनके स्टॉक्स की क्वालिटी के बाद ही हम उसके बारे में बात कर पाएंगे. बट मार्केट तो अच्छा है.
तो FIIs अगेन बहुत महीनों से सुनते आ रहे हैं कि FIIs आर सेलिंग, FII दिस, FII दैट. हर किसी को FII से बड़ा डर लगता है आज के टाइम पे, बिकॉज सबको ये लग रहा है कि वो छोड़ के भाग रहे हैं मार्केट्स को. April 7 को भी हमने कुछ ऐसे ही देखा, FIIs पुल्ड बैक 9,000 crore रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट. अब पहले ये हो रहा था कि DIIs वर बाइंग, तो वो चीज़ बैलेंस हो रही थी. पीपल सेड कि DIIs आर लाइक जस्ट they're just making the market and they're maintaining the market and everything. But right now a lot of numbers suggest कि DIIs भी pull back कर रहे हैं. तो what do you think retail investors को क्या करना चाहिए? I mean, should we be worried कि यार अब जब इतने बड़े institutions are pulling back from the market, हम भी छोड़ दें या हम बैठे रहें? देखो, आपके आंसर को मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ. एक तो FIIs के नंबर्स को आपने कहा कि कुछ महीने से FII बेच रहे हैं, तो आई मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट. FII पिछले 5-6 साल से बेच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को नेट नंबर्स में. अगर आप सेबी पे जाएंगे और नंबर्स चेक करेंगे तो FII 3-6 महीने से नहीं बेच रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली पिछले 5-6 साल से वो लोग बेच रहे हैं. केवल कोविड के अंदर वो लोग कुछ हद तक नेट बायर्स थे, उसके बाद से वो लोग बेच रहे हैं. नंबर 1. और उनके बेचने से अब ज़्यादा इम्पैक्ट हमें क्यों नहीं पड़ता है? आई गिव यू 3 स्टैट्स. अक्टूबर 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आए थे तो FIIs ने 15,000 करोड़ का माल बेचा था. सिर्फ 15,000 करोड़ का माल बेचा था और निफ्टी गिरा था 25%. सिर्फ 15,000 करोड़ का माल बेचा था और निफ्टी गिरा 25%. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. कोविड के अंदर FIIs ने, कोविड विच इज मार्च 2020, FII ने 65,000 करोड़ का माल बेचा था, निफ्टी फिर दोबारा 25% गिरा. कोई बात नहीं. अब आते हैं मार्च, तीसरा ऑप्शन. ठीक है. सो वी हैव सीन COVID-19, वी हैव सीन लेमन ब्रदर क्राइसिस. निफ्टी फॉलोन बाय 25%. बट एक बार 15,000 करोड़ माल बेचने पे इतना गिरा था और एक बार 65,000 करोड़ के माल बेचने पे इतना गिरा. जनवरी 2025 में FIIs ने 85,000 करोड़ का माल बेचा और निफ्टी गिरा सिर्फ 1%. सो आपको लगता है कि हमें उसको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए अभी, जब 85,000 करोड़ का FII ने माल बेचा और निफ्टी सिर्फ 1% गिरा? It shows the resilience of Nifty. True. So अब FIIs उतना रेलेवेंट नहीं रहे जितना वो शायद आज से 10 से 15 साल पहले हमारे लिए रेलेवेंट होते थे. So I think a retail investor, if they are buying a quality stocks within Nifty 200 at a reasonable valuation, I'm sure they should continue to buy their stocks. I have a question here. Yeah. तो अगर like you said all of your facts make sense, but then फिर इतना बड़ा हवा क्यों बनाया जा रहा है कि FIIs are selling? I mean, I've seen so many influencers talking about it. Why scare the people? I think it's not hawa because media has to publish something. And the investor and the retail investor and the public need something to read every day. Yeah. How you're going to create that, it's an information system. Right? It's information. So I'll not blame media for this. Yeah. They just write what they observe and they are right. But that is how the public interact among themselves and how they create hype and hoopla about it. But honestly, numbers speak louder than any emotions. Yeah. Because what we are talking about is the emotion. Right? कि hype है, hoopla है, over panic है. But numbers तो कुछ और कह रहे हैं. Numbers बोल रहे हैं कि जनवरी 2025 में FIIs ने 85,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे और निफ्टी केवल 1% गिरा. That's a fact. So honestly, my advice to the retail investor, or my belief to the belief which I can convey to the retail investor is they should continue to buy Indian stock market only in quality stocks of Nifty 200. I'm sure there are a lot of money to be made in Indian market in next 3 to 5 years perspective. Okay. So like we just talked about कि Nifty 50 में या Nifty index में mostly it's just banking and financial services. But there are of course sectors like auto, pharma, IT, जो कहीं ना कहीं they are very export heavy businesses, right? And amidst this very global tariff war, how do you think ये सारे sectors अब affect होंगे in the long term? कुछ हद तक ऑटोमोबाइल ऑलरेडी अभी अपने पीक से 20% डाउन है. ठीक है. फार्मा भी अब काफ़ी हद तक सेटल हो गया अपने उससे. ठीक है. तो ये सेक्टर्स के अलावा इन सेक्टर में थोड़ा अभी हेडविंड्स रहेंगे आगे जाके, राइट? बट हिंदुस्तान के अंदर करीबन 6,500 स्टॉक लिस्टेड हैं. इस स्पेस के अंदर शायद 200 स्टॉक लिस्टेड होंगे. हम 200 को छोड़ देते हैं ना. बाकी 6,500 में से 6,000 स्टॉक हमारे पास है वेयर वी कैन इन्वेस्ट. वी कैन इन्वेस्ट इनटू डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज, राइट? वी कैन इन्वेस्ट इनटू FMCG, which is we are finding it a very good valuation today. After COVID-19, I think FMCG is the cheapest in terms of valuation if I compare around COVID-19 valuations. One, it's a good buy. It is a domestic growth story, right? It has nothing to do with the Trump
tariffs. Am I fair? Yeah. Right. Indian banks, I think yesterday only, the bank Nifty has touched a new lifetime high. How banks are going to get impacted from Trump tariff? I am still figuring out. Right? There is no point they're going to get impact. At least not directly. Yeah. In the long run, they may have an impact because they, to whom they provide finance, which industry they provide finance, they may pass through a rough patch, but it will happen over a longer period of time. But there is no point of panic there in bank, right? So, at a time being, smart investors can wait little more in pharma and automobile sector to invest in. And apart from this, we have around 6,000 stocks to invest in Indian stock market. They can choose a quality stocks and invest into them. These two sectors can be put on hold for some time. Basically वही है that we are just getting scared because a very small percentage of sectors are affected by all of this. Correct. जब से tariff war start हुआ है US में the market has lost $6.5 trillion in market value. ये ऐसे एक fact है, but when you understand that this is twice of India's GDP, तब थोड़ा सा डर लगता है, right? तो my question to you is कि जो Indian investors US market में invest करते हैं, global market में invest करते हैं, what should they be doing? Should they be rethinking their investments? क्या उन्हें थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए या इसको they should treat it as a buying opportunity? What do we do with our global investments? You said अभी $6.4 trillion का market cap erode हुआ है US के अंदर. जी. Because of this tariff and all that. And it is twice of India's GDP, I agree. But do you know that US stock market is 20 times bigger than the Indian stock market? You have to factor in that as well. True. So from that way, it is just minuscule. Right? So one. Number two, when we see that this tariff war was at peak in probably in April, 7th April or 10th April, whatever the timeline had been, I think after that market has already recovered almost 10 to 12% at an indices level. Okay. Right? So I think any such pain which gets created or which gets created because of too much negative emotion, it's a buying opportunity for you as an investor. Got So it. we invested when Nifty was 22,000 and we made 12% of the indices even, forget about the stocks. Right? So any such pain, even if it come further, it's a buying opportunity for investors and they should be ready at least 20 to 30% cash in their portfolios. They should not remain 100% invested at this moment of time when the world is passing through a rough patch of geopolitics. Yeah. So if you have 20-30% cash, of course you can invest at every penny whenever the market goes down. I want to understand कि now that the markets are so volatile, right? It's very difficult to predict कि अब आगे क्या होने वाला है. It always is with the stock market, but right now it's a little more complicated. तो my question is now कि what are some strategies जो हम अपने portfolio rebalancing में या asset allocation में use कर सकते हैं to make sure that हमारा portfolio is protected against the worst of this entire uncertainty? देखिए अगर अपने पोर्टफोलियो को हमें ट्रम्प प्रूफ बनाना है, इंडिया के इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, इफ यू वांट अ ट्रम्प प्रूफ पोर्टफोलियो देन आई थिंक इट शुड बी यू शुड हैव एक्सपोजर टू FMCG because that's a domestic story. You should have some exposure to the banks which are trading at a fair valuation. Some of the banks are overvalued, some of the banks are fairly valued, and particularly I see a huge opportunity into PSU bank and PSU space. And PSUs का ट्रम्प टैरिफ से बहुत कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है. तो अगर आपके पास ये तीन कॉम्बिनेशन है, PSUs, FMCG एंड सम अंडरवैल्यूड बैंक्स, आई थिंक आपका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक ट्रम्प प्रूफ हो सकता है. Got it. So these are like the hero indices and hero categories for now. You can say it's a low beta to what Trump is going to tweet tonight. Yeah, his tweets are dangerous for us. I agree. Yeah. So because nowadays the market moves away on tweets, right? So you have to be Trump proof. I've seen a lot of memes where people say कि there's like a tweet by Trump कि ले तुम्हारे सालों की technical analysis को एक tweet से खत्म कर दिया. 100%. So this is actually happening. So if the time has changed, then we have to change. So we have to be Trump proof portfolio. Yeah. जब भी कोई भी market volatility आती है या market goes into recession or whatever, anything like that happens, everyone gets scared and everyone is in that बहुत ही confusion वाला state कि should I keep on buying or should I keep on selling. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी SIPs को रोक देते हैं, they stop participating in the market, भाग जाते हैं basically, which is okay. But my question is कि अगर हम अपनी SIP को 1 या 2 साल के लिए मिस कर देते हैं
तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? देखिए, सिप में रोकने का तो कभी भी कोई भी एडवाइज़र, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट आपको एडवाइस नहीं करेगा, क्योंकि जब आप सिप की शुरुआत करते हैं तो आप 30 साल का गोल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी एज अभी 20 है, 18 है, जैसा आपने कहा, राइट. तो आप जब सिप करते हो तो आप सोच के चलते हो कि मुझे 30 साल तक सिप करनी है, राइट. और सिप का पर्पज़ ही यही होता है कि भाई अगर मार्केट डाउनफॉल आएगा तो आपको उसी चीज़ के हायर नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, राइट. तो वो तो किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, बट अगर आप उसको रोकते हो बीच में 1-2 साल के लिए तो उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ पे तो काफ़ी तक इम्पैक्ट पड़ ही जाता है. एंड आई थिंक मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट किया है कि भाई मेरा निफ्टी का ग्रोथ मान लीजिए 13 से 15% के बीच में है, और आप ये लो पीरियड्स जो सिप के एक्चुअली आपको जहाँ सिप बढ़ानी चाहिए, जहाँ आपको सिप बढ़ानी चाहिए या डबल टॉपअप कर लेना चाहिए, वहाँ आप अगर बंद कर देते हैं तो जो आप 13 to 15% का कैलकुलेशन लेके चलते हैं अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसमें करीबन 2 से 3% का एनराइज रिटर्न पे फर्क पड़ेगा आपके आने वाले 30 साल के अंदर, राइट. सो दिस इज अ सिन इफ यू स्टॉप अ स्टेप ऑन इफ यू स्टॉप अ सिप, इन माई पर्सनल व्यू. इट शुड नॉट बी डन. दादा जब भी मार्केट में क्रैश आए तो आपकी अपनी सिप को दुगना या तिगना कर देना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट लोअर प्राइसेस विच विल गिव यू अ हायर नंबर ऑफ यूनिट्स or a higher number of units on a lower NAV. Gold also again is in the news again. A lot of things are happening in the news right now. So abhi filhal gold is trending because it hit 1 lakh rupees per 10 grams, which is crazy. But what we've seen is that investors are actually trying to buy more gold and they're running away from equities because of everything that's going on, which is fine. Do you think that people have started to finally recognize gold as a good investment avenue and not just like something जो emotionally किसी चीज़ से connected हो? Trust me, the credit goes to all the Indian housewives, including my mom, my dadi, my everyone, who has been holding gold for ages, right? So probably they are giving complex to every hedge fund manager in the world nowadays, because gold has outperformed every other asset class in last 2 years. However, I have been very bullish on the gold since my media interaction in April 2020, when the gold prices were close to $1,600 an ounce. And today the gold price is close to $3,300 an ounce, which is just doubled in dollar term. Right? In INR term, it has given you almost 140% return along with the currency depreciation of INR in last 5 years. So gold has been a best asset class, will continue to be the best asset class till the time we have this fiat currency system. Okay. अभी पिछले आंसर में मैंने उसकी बात की थी कि ये जो सिस्टम है यूएस का, जहाँ पे वो लोग कभी भी अपना फेड कभी भी पैसा प्रिंट कर सकता है. जैसे आपने कहा अभी जो यूएस में मार्केट फॉल आया था, इट वाज ट्वाइस ऑफ इंडियाज जीडीपी. ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर नंबर कि जब कोविड-19 था तो यूएस ने 6 महीने के अंदर $4 ट्रिलियन प्रिंट किए थे. आई रिपीट, 6 महीने के अंदर $4 ट्रिलियन प्रिंट किए थे, और ये इंडिया के जीडीपी से भी ज़्यादा है. और इंडिया को ये जीडीपी क्रिएट करने के लिए लगभग 80 साल का समय लग गया. तो यूएस कैन डू इट, एंड नाउ द वर्ल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज कि बस वी हैव टू गेट अवे विद द यूएस डॉलर. And that's what you are seeing, that Russia, China, Iran and BRICS nations, all these put together trying to surpass US dollar as a mode of payment. So जब तक ये डॉलर का प्रिंटिंग चलता रहेगा तब तक मुझे लगता है कि ये गोल्ड ऊपर जाता रहेगा. Okay. हाँ, because gold is a best hedge against the US inflation. Yeah. So I'll give you some interesting facts about gold. 1971 के अंदर 1 आउंस ऑफ गोल्ड की कीमत थी $32. 1 आउंस $32. आज 1 आउंस ऑफ गोल्ड की कीमत है $3,200. That is What crazy. does it signify? It signifies that US dollar has depreciated by 10,000% against gold in last 70 years. I repeat, US dollar has depreciated by 10,000% against gold in last 72 years or 70 years, whatever timeline is. So that's the power of gold. And जब तक ये geopolitics रिस्क रहेगा अभी, जो कि हम देखते आ रहे हैं दुनिया के अंदर अभी एक geopolitics रिस्क चल रहा है, गोल्ड ऊपर जाता रहेगा. So we are a believer in gold.
हमने गोल्ड 2020 से भी एक्यूमुलेट करना शुरू किया एंड तब से हमारे इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया और हमने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया गोल्ड के अंदर. इफ़ यू आर टेकिंग गोल्ड प्योरली फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, आई थिंक गोल्ड ETF आर द बेस्ट रूट. Gold ETF and gold Bs are the best route to take advantage of that depreciation in the gold value. Okay. Now that we're talking about ETFs, there have been all the craze lately. We saw that 2,500 crore ka inflow hua in ETFs in India, and globally also this trend follows. So I want to understand, why is this sudden shift happening towards ETFs? अब investors को ETFs में क्या ऐसा समझ आ रहा है या क्या ऐसा पसंद आ रहा है that they are now attracted towards ETFs? Trust me, I'm very happy when I seen this number. कि 2500 करोड़ रुपया ETF में आया है. It shows that investors are now become informed investors. ETF क्या होता है? ETF एक कॉम्बिनेशन होता है आपके 8-10 स्टॉक का. ठीक है. आप जब कोई स्टॉक बाय करते हो तो वो स्टॉक एक दिन में ही 5% गिर जाता है. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, जिसमें एक ETF के अंदर आपके पास 8 या 9 स्टॉक्स हैं, तो उसका एक दिन में 5% गिरना बहुत मुश्किल होता है. कोई सीधा 8 के 8 स्टॉक एक दिन में 5% गिरना मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत बुलिश हैं ऑयल ETF के ऊपर. हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अंदर. ठीक है. अब ऑयल ETF का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसमें 37% रिलायंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 37% रिलायंस है, 27% ONGC है, फिर उसके अंदर BPCL है, IOC है और गेल है. ठीक है. HPCL है. ऐसे करके 8 या 9 स्टॉक हैं. ठीक है. जब मार्केट ख़राब होता है तो रिलायंस 1-1.5% गिर जाता है. ठीक है. ONGC 1-2% गिर जाता है. पर जब ऑयल नीचे गिरता है तो ये स्टॉक गिरते हैं, बट IOC और BPCL चढ़ जाते हैं. तो ऑयल ETF में उतनी गिरावट नहीं आती जितनी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आती है. तो इट इज़ बेटर, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो और बहुत ज़्यादा रिस्क हो, तो इट्स बेटर कि आप ETF में ट्रेड करें रादर देन टेकिंग अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू द स्टॉक. एंड दैट्स व्हाट ऑल स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर डूइंग nowadays. So it's a good number because ETF will give you a lot of safety. It is not a single stock. It is not impacted by the single stock or single company's profit, loss and balance sheet. It will be a combination of 8 to 10 stocks. So it safeguards you. Got it. So it's good whenever the market are too volatile and there's too much of uncertainty. It's better you should invest into ETF rather than taking exposure to the direct stocks. So ETF is basically a basket of stocks. That's right. But ETF and म्यूचुअल फंड में फिर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? ETF में जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो उसकी कॉस्ट की है. मुझे जैसे म्यूचुअल फंड में जनरली हम देखते हैं रेगुलर प्लान्स के अंदर जो कॉस्टिंग है वो लगभग आपकी 2 से 2.5% की होती है. ठीक है. आपका एक्सपेंस रेशो उसके आसपास होता है, टोटल एक्सपेंस रेशो, और कॉस्टिंग 2 से 2.5% की होती है. ETF के अंदर मैक्सिमम कॉस्टिंग जो मैंने देखी है अब तक वो 20 से 30 पैसा होती है. तो इफेक्टिवली आपने 2% तो सीधा बचा लिया कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड. अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं एंड यू वांट टू राइड ऑन अ पर्टिकुलर थीम, देन यू हैव 2 choices. Either you take a thematic mutual fund or a sectoral mutual fund. That's one option. Okay. But in those themes, you have to pay 2.5% of the fees to the fund manager. Option number 1. On the other hand, if you're bullish on that theme and you buy the ETF, then your cost is only 0.2%. So you know that this theme is going to work out. Yeah. So rather than taking a bet on a thematic mutual fund, it's better you take bet on a ETF and you save almost 2% of your annual expenses. So this is the biggest difference. Otherwise, there is no big difference as such. Okay. Secondly, you can add one more difference, that mutual fund will have at least 50 to 60 stocks. So it diversify your risk because it's too diversified. It diversify your risk as well as it diversify your returns. So it will cut down on your returns because 50 stocks at a time, all 50 stocks will go up is very difficult. But in ETF, you will find a basket of 8 to 10 stocks. So you will have little higher risk, but little higher reward as well with lower expense ratio. So these are the 2 major differences. US markets are doing well, but your perspective on the Indian market is very bullish from what I can gauge. Why is that? What's happening? Itna positivity? So honestly, in every global forum, wherever I go across the world, I go on these forums. And someone asked me in one of the podcasts that which is the most undervalued stock in the world as per you? Which is the most undervalued stock in the world as per me? And I said India.
So I'm a perpetual bull on India, Yeah. at least from next 5 to 8 year perspective. Hmm. And there are a lot of reason to it. Number one, that India has 3 Ds. Number one, demand. You can sell a shirt for $1 and you can sell a shirt for $100. You can also sell a shirt for $1,000. You will find buyer for all. आपका इन्वेंट्री ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं. अगर आपने प्रोड्यूस किया है वो पक्की बात कंजम्पशन में हो जाएगा irrespective of what price you are selling it to it. $1, $100, $1,000 तीनों चीज़ों के लिए आपको बायर मिल जाता है. दैट इज़ डिमांड. नंबर 2, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड. आज भी इंडिया का 70% पॉपुलेशन 40 ईयर्स से नीचे है. ठीक है, जो इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्टनेस देता है. राइट, और वो वर्किंग पॉपुलेशन है. हाँ, एक बात अलग है कि वर्किंग पॉपुलेशन में आजकल हम लोगों को एक थोड़ा क्राइसिस है जॉब्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर. वो एक क्राइसिस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ AI एंड अदर फैक्टर्स. बट एटलीस्ट ये जो 40 ईयर से अंडर वाला पॉपुलेशन है, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इल. दे आर एटलीस्ट फिजिकली फिट. सो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर आई सी, जब तक ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक नाइटमेयर नहीं बन जाता है. बिकॉज जैसे ये लोग 50 की एज में आएंगे, इनको बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, इनकी हेल्थ इनका साथ नहीं देंगी. तो जो आज मेरे लिए एसेट है बॉडी, या जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड मेरे लिए एसेट है, ये कल मेरे लिए लाइबिलिटी बनेगा. तो हमें लगता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट में ये जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आने वाले 7 से 8 साल तक के लिए और बचा है. सो फ्रॉम नेक्स्ट 7 to 8 ईयर perspective, we are bullish on India. This is D number 2. D number 3 is democratic setup. Okay. इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत अलाइन करता है, विच इज़ इन कंट्रास्ट टू चाइनीज़ एंड रशियन गवर्नमेंट मैकेनिज्म. राइट, तो जितना भी पैसा वेस्टर्न वर्ल्ड प्रिंट करता है, हमने अभी बात करी, उसने $4 ट्रिलियन प्रिंट किया. अब मनी का एक नेचर है दैट मनी ऑलवेज चेज ग्रोथ एंड ग्रोथ लाइज इन इंडिया. अब वो कई बार पैसा इन्वेस्ट होगा FII के रूप में, कई बार वो FDI के रूप में आता है, कई बार वो आपके कंजम्पशन के रूप में आता है. बट कहीं ना कहीं वो पैसा जो है आपको ग्रोथ को चेज करता है. तो ये जो तीसरा फैक्टर है डेमोक्रेटिक सेटअप का, बिकॉज आज अगर US $4 ट्रिलियन प्रिंट करता है, तो आपको लगता है कि वो चाइना में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा. आपको लगता है वो रशिया में इन्वेस्ट करेगा? नहीं. आपको लगता है वो गल्फ में इन्वेस्ट करेगा? तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इंडिया. अब पैसा तो प्रिंट हो गया, पैसा तो वो फाड़ नहीं देगा, ना जला देगा. पैसा घूम फिर के कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर आ जाएगा, और ग्रोथ आती है इंडिया के अंदर. और यहाँ से हमारा उनका जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, जो वर्किंग स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट्स का, वो भी सेम है, विच इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप. तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये हमें बहुत एडवांटेज देता है. तो ये जो 3 Ds हैं, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे डालते हैं. ये तो हुआ इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. अब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, दैट वाई आई एम बुलिश. देखिए, इंडिया के अंदर अगर 100% शेयर्स हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारा मार्केट कैप करीबन 3.5 लाख करोड़ के, 3.5 ट्रिलियन के आसपास है जो हमारा मार्केट कैप है. उसके अंदर अगर मैं देखूं कि 100% जो इक्विटी है, उसका ब्रेकअप बड़ा इंटरेस्टिंग है. Okay. इस 100% इक्विटी में से 55% इक्विटी है प्रमोटर्स के पास, 17% इक्विटी है FII के पास, 17% इक्विटी है DII के पास, और बाकी जो 11-12% रफली जो एक नंबर रहा, बैलेंस कर लीजिएगा आप, ठीक है, वो है पब्लिक के पास, है मिसलिनियस लोगों के पास. जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है, आपको लगता है कि इंडिया का प्रमोटर सस्ते में माल बेचेगा अपना? नहीं. तो आपकी 55% की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई. वो तो अब सप्लाई मार्केट में आएगी नहीं. और आपको जब भी प्राइस तभी बढ़ते हैं जब आपकी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड होती है. ये इकोनॉमिक्स का रूल है, ये इकोनॉमिक्स का रूल है. अगर आपको प्राइस बढ़ाने हैं तो आपको सप्लाई का कंस्ट्रेंट होना पड़ेगा, तभी आपकी प्राइस बढ़ेंगी. तो जब भी मार्केट में कोई ऐसा डाउनफॉल आता है, जो हमने देखा अभी 22,000 निफ्टी के आसपास, तो जो 55% प्रमोटर हैं, उन्होंने पैसा रेज करना बंद कर दिया, बिकॉज उनके शेयर्स रियल वर्थ नहीं थे कि वो पैसा रेज मार्केट से करें. वो सप्लाई आपकी आउट हो गई. दूसरा फैक्टर है आपका DIS का. DIS के पास आज करीबन 25,000 करोड़ का मंथली SIP है, जो कि साल का हो गया 3 लाख करोड़. 3 लाख करोड़ एक फंड मैनेजर पे पूरा आता है हिंदुस्तान के अंदर हर साल. ठीक है, जो उनके लिए कंपल्सिव बाइंग है. इवन इफ अ फंड मैनेजर आई फील दैट मार्केट इज लिटिल कॉस्टलियर टू मी, बट आई हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, ना कि मुझे कैश पे बैठने के लिए. उनको तो करना ही है, पड़ेगा. सो इट्स कॉल्ड कंपल्सिव बाइंग. Okay. तो 55% आउट,
17% या 18% दिया है, वो भी माल तो बेचेगा नहीं, वो खरीदेगा ही। नंबर 3 कंस्टिट्यूएंसीज और रिटेल इन्वेस्टर, जो आपने कहा 8 to 10% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर हैं। कोविड के बाद से लगभग हमारे पास 15 करोड़ नए डीमैट खाते खुले हैं। हाँ. अब 15 करोड़ में से मान के चलूँ मैं, अगर मान लीजिए आधे डीमैट खातों में भी साल का 1 लाख रुपए आता है, तो वो 5 लाख करोड़ रुपए आपकी मार्केट में हर साल आता है। तो 3 लाख करोड़ का SIP, 5 लाख करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेल इन्वेस्टर, ये जो 8 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में आ रहा है, यही रीज़न है कि इस बार जनवरी 2025 में FIs ने 85,000 करोड़ का माल बेचा और निफ्टी गिरा सिर्फ 1%। नाउ यू गॉट द आंसर। तो अब इंडिया का मार्केट टेक्निकली इतना, पहले तो इंडिया का मार्केट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शुरू से रहा है, शुरू से, तभी शायद हम लोगों ने ये निफ्टी का कैगर आपने देखा 15% के आसपास कैगर है अपना पिछले 20-25 सालों का, ठीक है। बट अब इंडिया का मार्केट टेक्निकली भी इतना स्ट्रांग हो गया है कि इसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता है। कोई 55% प्रमोटर विल नॉट सेल, DI कंपल्सिव बायर, रिटेल कंपल्सिव बायर, FI माल बेचता जाएगा, ये लोग खरीदते जाएंगे, तो कैसे गिरेगा मार्केट? हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं बेसिकली। एब्सोल्युटली हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, और वो अब नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है कि 85,000 करोड़ की स्टॉक बेचने के बाद निफ्टी सिर्फ 1% गिरा जनवरी के अंदर। एंड बिकॉज लाइक वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि इंडियन मार्केट का तो आउटलुक अभी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो वेल। फंडामेंटली स्ट्रांग थे पहले हम, अब हम टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गए हैं। तो जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं टेक्नो फंडा। ओके। And this techno funda is good for Indian market Yeah. for next 6 to 7 years. And you have any one last parting advice for our audience कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए? My advice would be that follow your gut feel and invest wisely. Don't go by any social media trap, tips on messages or text messages or WhatsApp group or Telegram groups. I think don't get swayed away by that कौन क्या कहता है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। द ओनली माई पीस ऑफ एडवाइस टू द इन्वेस्टर वुड बी इन एजुकेशन ऑन वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। Is this a Marwari approved advice? Yeah, it is Marwari approved because we believe in education and we have yes, it is Marwari approved. Perfect. So when I was researching you, we came across a lot of your I would say controversial takes on a lot of things. तो एक एक करके मुझे आपसे पूछना है कि what is the logic behind saying this? A very controversial thing you said is investors who wait for a bottom will never invest. Honestly, this is not a statement, it's a fact. Okay. Anyone, because what happens is in India or across the world, there are two views of stock market investments which persist. Number one is a fundamental view. A fundamental analyst will come on the channel on various platform and say कि आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनियां खरीदनी चाहिए सस्ते दाम पे। अब सस्ता दाम कब आता है? जब मार्केट में क्रैश आता है, ठीक है। जब क्रैश आता है मार्केट में, आपको लगता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनियां अच्छे दाम पे मिल रही हैं, सडनली आपको कोई टेक्निकल एनालिस्ट आके बोलता है कि भैया शॉर्ट दिस स्टॉक बिकॉज ट्रेंड इज डाउन। नाउ इन्वेस्टर गेट कंफ्यूज कि बॉस मैंने तो ये सोचा था कि जब कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी अच्छे दाम पे मिले, सस्ते दाम पे मिले, तो मुझे खरीदना चाहिए, पर ये तो एनालिस्ट आके मुझे शॉर्ट करवा रहा है। अब शॉर्ट मतलब भैया कि स्टॉक नीचे जाएगा, तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, लेट मी वेट इट फॉर द बॉटम। जब ये 100 का भाव 80 आ जाएगा तो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। अब वो 80 का भाव आता है नहीं आता है वो किसी को नहीं पता, और वो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज वो दोनों एनालिस्ट को सुनता है। वो फंडामेंटल वाले को भी सुनता है। कोई फंडामेंटल एनालिस्ट कहता है आप अच्छी स्टॉक को खरीदो पर अच्छे भाव पे खरीदो, महंगे भाव पे मत खरीदो। और टेक्निकल वाला कहता है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती मिल रही हो या ट्रेंड नीचे का हो तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो तो बोलता है कि जब चीज़ें ऊपर जा रही हो तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जनरली जो भी इन्वेस्टर्स इन दोनों व्यूज़ को सुन के चलते हैं वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉटम का वेट करते रहते हैं और इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, फंस जाते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट कहेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा 26,000 भी गया था, निफ्टी लोग 30,000 की बात कर रहे थे। नो वन सेड कि 21,000 आएगा। एम आई राइट? क्योंकि उनको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, दे ऑलवेज गो फॉर दैट ट्रेंड। अगर ऊपर है तो ऊपर है,
irrespective whether fundamental support it or No. not. On the other side, अगर नीचे है तो नीचे है, irrespective कि फंडामेंटल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, पर उनको लगता है नीचे जाता जाएगा. और इन्वेस्टर दोनों की बात सुनते हैं, बिकॉज वो काफ़ी मीडिया चैनल्स देखते हैं. कभी कोई टीवी देखता है, कोई टेलीग्राम देखता है, कोई सोशल मीडिया यूट्यूब देखता है. अब इतने सारे व्यूज़ के बाद वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं और फाइनली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हमने कहा कि इन्वेस्टर हु वेट फॉर द बॉटम विल नेवर इन्वेस्ट. Makes sense. Now it makes a lot more sense. Okay. The second statement you've made is riskiest product in this inflationary environment is fixed deposit. And I think a lot of old people are going to be very hurt by that. So honestly, I know that I'm going to hurt them, but it's a fact. Because I have not seen any fixed deposit over a longer period of time which has beaten inflation. Because जो भी banks हैं वो आपको उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जितना कि उस इकोनॉमी में इंटरेस्ट होता है. अब जब मान लीजिए बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, उसके ऊपर आपको 30% का लगभग टैक्स लगता है. अगर आप हाईएस्ट टैक्स इनकम स्लैब के अंदर आते हैं तो आप 8% में से 2.4% घटा दीजिए, विच इज़ क्लोज टू 5.6%. और इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो भी 7% का है, और लगभग 6 से 7% का आपका इन्फ्लेशन होता है. तो जब इन्फ्लेशन 6% और आपका रियल रिटर्न 5.4%, तो आप कहाँ बीट कर पा रहे हो उसको. सो आई नो दैट सम पीपल मे गेट हर्ट, बट द फैक्ट रिमेन द फैक्ट. And the third statement you've made is most of investors don't make money because they are passive investors at the wrong time or in the wrong stocks. हाँ यार, इसमें मैंने काफ़ी देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग सोचते हैं कि आप मैंने स्टॉक ले लिया, पड़ा रहने दूंगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है. जैसा मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में बात की थी कि निफ्टी तो बढ़ जाएगा, पक्का श्योर है. कोई निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें दम है, और हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनियां हैं. पर आप 6000 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक ले लो और बोलो वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. तो जनरली मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा लॉसेस इन्वेस्टर्स के होते हैं वो निफ्टी कंपनियों में नहीं होते हैं. वो जनरली उन कंपनियों के में होते हैं जहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनको कंपनी के बारे में ABC भी पता नहीं होता है. तो इसलिए अब वो उसमें भी सोचते हैं कि निफ्टी बढ़ेगा तो मेरा ये स्टॉक भी बढ़ जाएगा. अरे क्यों बढ़ेगा भाई, क्यों बढ़ेगा? व्हाट इज़ द रीज़न? निफ्टी तो ड्राइव होता है बिकॉज उसमें क्वालिटी है. क्या आपके स्टॉक में वो क्वालिटी है? तो आप उसको 1 साल रखो पैसिवली, 2 साल रखो, 3 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, तो भी वो नहीं बढ़ेगा. हो सकता है कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए. ये ज़्यादा रिस्की है. हाँ, ये ज़्यादा. सो वी हैव सीन JP Associate, Unitech, Reliance Communication, they had been the part of Nifty. Yeah. And they are bankrupt today. So it can happen. If you don't choose a company wisely, you are gone. True. And if you don't have that art of choosing a right company, it's better you invest through only mutual fund. So even if you are a passive investor, either at the wrong time or in the wrong stock, even if you wait for 10 years, you will not make money. Rather, you lose your entire capital. And we have given you some examples. Yeah. That's how. So that's where the investor has to be cautious. Passive investing अच्छा है, बट किस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया वो मैटर करता है. Got it. Thank you so much, sir. That was a wonderful session. बहुत कुछ सीखने को मिला. And I think my biggest, takeaway is going to be कि just be more educated about your investments and about your stocks and choose the right stock. That is very important. Absolutely. Pleasure having me on the show. Thank you so much. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.